Hello friends, this is Dr. Sudhanshu Ranjan and this time I have come along with one of the most important and basic chapter of whole physics, that is kinematics. Just focus on my line. What I said to all of you is that this is the most important and basic chapter of whole physics. I have nowhere said that this is the most important chapter of physics of class 11 only. Why I am saying all this? Because almost all the students think that 11th class is not important at all and 12th class is very much important. Why they are thinking like that? Because in 12th class there is a board exam and in board exam they have to secure a good marks. On the other hand, there is no board exam in 11th class. That's why they are not taking 11th class very seriously and meticulously. At the same time, some of the students think that whether they are getting failed in the exam of class 11, it doesn't make any difference. It doesn't impact on their career. At the same time, some of the students manage to get good score in the board exam and they start thinking that anyone can do that. Yes, I agree to those students, those who feel that anyone can get good score in 12th class without going through 11th class. But my dear friends, I would like to tell you that with your marks, you are not going to crack any competitive exam. With your knowledge, with your basic concept, you are going to crack any competitive exam which you want to crack in your life. Your knowledge will decide your future. Your marks will never decide your future. Just remember this line. Your knowledge will reflect your identity. So what I told you, that please have a good command on your basics, and basic of 12th class is nothing but the concept of 11th class. Just remember this line. This is very important for your future. So with this, we can start this lecture. So in this lecture, what we are going to study? We are going to study the basic of kinematics, or we can say that the introduction to the kinematics. तो हमारे पास जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? काइनेमेटिक्स है. जब भी हम किसी चैप्टर को देखते हैं तो सबसे पहले उस चैप्टर के मीनिंग को हमें समझना जरूरी होता है, क्योंकि उस चैप्टर के मीनिंग को अगर हम लोग समझ लेते हैं तो ऑलमोस्ट उस चैप्टर के जितने भी कंटेंट्स होते हैं उसको हम अच्छे से समझ पाते हैं. तो सबसे पहले काइनेमेटिक्स के मीनिंग को हम लोग समझ लेते हैं. तो काइनेमेटिक्स के मीनिंग को समझने के लिए काइनेमेटिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया. एक को बोला गया काइनेमैट और दूसरे को बोला गया एक्स. काइनेमैट एक ग्रीक वर्ड से लिया गया और उस ग्रीक वर्ड का जो नाम था वो काइनेमा था, और इस काइनेमा का जो रूट वर्ड है उसे हम काइनिन कहते हैं, और इस ग्रीक वर्ड का जो मीनिंग है उसे हम कहते हैं मोशन. वहीं पे अगर मैं एक्स के मीनिंग की बात करूं तो कुछ लोग इस एक्स वर्ड को इश्क भी समझने लगेंगे. अगर आप लोग इस एक्स वर्ड को अगर इश्क समझते हैं तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा. क्यों? क्योंकि जब किसी से आपको इश्क हो जाता है तो उसे भूलना आपके लिए असंभव सा लगता है. तो मैं चाहता हूं कि इस चैप्टर से भी आपको इश्क ही हो जाए, ताकि इस चैप्टर को आप कभी भी ना भूल पाओ, क्योंकि ये जो है ये बेसिक चैप्टर है. इस चीज को आप याद रखते हो तो ऑलमोस्ट आपका फिजिक्स 50% से ज्यादा कवर अप हो जाता है और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही आसान हो जाता है क्रैक करना. Have you got my point? तो यहां पर जो एक्स वर्ड है इसका मीनिंग होता है स्टडी ऑफ, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं साइंस ऑफ, या फिर हम इसे बोल सकते हैं नॉलेज ऑफ, कभी कभी इसे आर्ट ऑफ भी कहते हैं. अगर मैं काइनेमैट और एक्स के मीनिंग को मिक्स करके देखता हूं
तो यहां पर काइनेमेटिक्स का मतलब हमें क्लियर पता चल जाता है। तो यहां पर काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होगा? स्टडी ऑफ मोशन, या फिर हम बोल सकते हैं साइंस ऑफ मोशन, या फिर हम बोल सकते हैं नॉलेज ऑफ मोशन। तो अगर मैं इन दोनों वर्ड के मीनिंग को एक साथ कंसीडर करता हूं तो काइनेमेटिक्स का मतलब हो जाता है, काइनेमेटिक्स कैन बी डिफाइंड एज, कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ मोशन। ये तो हमने इन जनरल समझ लिया कि काइनेमेट का मतलब होता है मोशन और एक्स का मतलब होता है स्टडी, इसलिए हमने काइनेमेटिक्स को सिंपली डिफाइन कर लिया, इट कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ मोशन। लेकिन फिजिक्स में क्या होता है कि हम फिजिक्स में कुछ कंस्ट्रेंट को भी कंसीडर करके किसी वर्ड को डिफाइन करते हैं। तो उस कंस्ट्रेंट को यहां पर पहले समझ लेते हैं और काइनेमेटिक्स को फिजिक्स में कैसे डिफाइन करते हैं उसे हम समझ पाएंगे। तो कंस्ट्रेंट को समझने के लिए हम लोग यहां पर एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लिया जाए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है यहां पे, और इस ऑब्जेक्ट को हमें इस जगह, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्प्लेस करना है। अगर इस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्प्लेस करना है तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे ही मैंने इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां चली आई, मतलब डिस्प्लेस हो गई। अगर डिस्प्लेस हो गई मतलब इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, या तो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है या तो फिर डिस्टेंस कवर किया है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। वेरी गुड। लेकिन आप जस्ट सोच के देखो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो रही है, ये तभी होगी जब ऑब्जेक्ट मोशन में है, और मोशन में है मतलब उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, या तो वेलोसिटी हो सकता है या तो स्पीड हो सकता है। तो हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हुई है, तो इसमें वेलोसिटी होगा या तो फिर स्पीड होगा। वेरी गुड। अब यहां पर फिर से हम इस चीज को समझते हैं कि अगर हमने इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां डिस्प्लेस किया मतलब हमने इसमें फोर्स लगाया है, और जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाते हैं इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, या तो एक्सेलरेशन होगा या तो डिसेलरेशन होगा। तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि जब हमने फोर्स लगाया है तो इसमें एक्सेलरेशन हो सकता है एंड डिसेलरेशन भी हो सकता है। और इसी डिसेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन भी कहते हैं, या फिर जर्क हो सकता है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पूरे काइनेमेटिक्स में ही डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहां पर मैंने आपको क्या बोला कि जब किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस किया जाता है तो उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखने को मिल सकती हैं। या तो डिस्प्लेसमेंट देखा जा सकता है, या तो डिस्टेंस देखा जा सकता है, या तो वेलोसिटी देखा जा सकता है, या स्पीड देखा जा सकता है, या तो एक्सेलरेशन होगा, डिसेलरेशन होगा, या जर्क होगा। डिसेलरेशन को ही हमने क्या नाम दिया? रिटार्डेशन। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारी चीजें रिजल्ट हैं। ये सारी चीजें क्या हैं? रिजल्ट हैं। अगर ये रिजल्ट है तो इस रिजल्ट का वजह कौन है, कॉज कौन है? तो यहां पे जो फोर्स है ये हमारा कॉज है, जिसे हम रीजन भी कह सकते हैं। इस फोर्स की वजह से ही ये सारी चीजें आई हैं, मतलब इस कॉज की वजह से ये सारा रिजल्ट आया है। और इस रिजल्ट को फिजिक्स में हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोशन। ध्यान से अब सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। इस रिजल्ट को हम लोग काइनेमेटिक्स में डिस्कस करते हैं।
मतलब यहां पर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन एंड जर्क, इन सारे चीजों के बारे में हम कहां डिस्कस करते हैं? काइनेमेटिक्स में। मतलब हम रिजल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं काइनेमेटिक्स में, और जो कॉज है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स में हम कॉज के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब हम लोग फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो काइनेमेटिक्स में डिस्कस करेंगे वो होगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोशन या तो प्रॉपर्टीज ऑफ मोशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मोशन, इसका मतलब यहां पे एक कंस्ट्रेंट आ गया। जब हम काइनेमेटिक्स को डिफाइन करते हैं तो हमें काइनेमेटिक्स में फोर्स के बारे में डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। काइनेमेटिक्स को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसके प्रॉपर्टीज ऑफ मोशन के बेस पे हम काइनेमेटिक्स को डिफाइन करते हैं। तो काइनेमेटिक्स को कैसे यहां पर डिफाइन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ all the characteristics of motion or the properties of motion without going into the discussion of the cause of the motion। मतलब हम लोग बिना फोर्स के डिस्कस किए हुए सारे प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, उसे ही हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। तो फिर से मैं इस बात को रिपीट कर दे रहा हूं, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो इसको अपने कॉपी में आप लिख सकते हैं कि काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ all the characteristics of motion or the properties of the motion without going into the discussion of the cause of the motion, that is force। Just remember that this is the best explanation of the kinematics in terms of physics। in general आप kinematics को कैसे define कर सकते हैं? Kinematics can be defined as the study of motion। just remember this one। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं इसे यहां पर लिख भी सकता हूं। तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं? kinematics is the branch of physics, the branch of physics which deals with the study of different characteristics or properties of motion without going into the discussion of the cause of motion। Cause of motion। Have you got my point? In general it can be defined as the study of motion। तो यहां पर आप देख लीजिए, अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोशन, तो आपको ये सारी चीजें लिखनी है। कौन कौन से? डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड स्पीड, एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन एंड जर्क। क्लियर है? अब पॉइंट ये आ जाता है, जब हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोशन है, इसमें एक टर्म आ जा रहा है मोशन, तो हमें मोशन के बारे में भी समझना जरूरी है। तो मोशन क्या है? मोशन को समझने के लिए हम लोग यहां पर एक पार्टिकल ले लेते हैं। मान लेते हैं ये पार्टिकल पोजीशन ए पे है और इस पार्टिकल को ए पोजीशन से हमने बी पोजीशन पे लाया। कहां पे लाया? पोजीशन बी पे लाया। तो अगर आप पार्टिकल के पोजीशन को चेंज करते हैं, दिस इज द पार्टिकल जिसका आपने पोजीशन ए से क्या कर दिया? बी कर दिया। जब हम पार्टिकल के पोजीशन को चेंज करते हैं टाइम के साथ, तो हम कहते हैं कि पार्टिकल मोशन में है। तो इन सिंपल वर्ड हम लोग ये बोल सकते हैं, पोजीशन, इफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज चेंज्ड, the particle is said to be in motion, or the particle is said to be in motion if the
पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज चेंज्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सो इसको अगर डिफाइन करना हो तो हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मोशन एनी पार्टिकल is said to be in motion if the particle changes its position or location with respect to time। मतलब टाइम के चेंज के साथ साथ अगर पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करता है तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल किस में है, मोशन में है। जब हमने मोशन को डिफाइन किया तो यहां पर एक वर्ड आया, दैट इज पोजीशन और द लोकेशन। इसका मतलब है कि हमें पोजीशन के बारे में समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजीशन। इन जनरल हम लोग समझते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को किसी जगह पे रखा गया है, उस ऑब्जेक्ट का वो जगह एक पोजीशन है। इन जनरल हम लोग ऐसे समझते हैं, लेकिन हम फिजिक्स में कैसे समझते हैं इसे समझना जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा, अगर मुझे पोजीशन या लोकेशन को समझना है तो मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं। मान लिया जाए आपका एक दोस्त आपसे मिलने के लिए आया है और वो दोस्त आपसे ये बोल रहा है कि वो आपके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, कि मान लिया जाए आपका दोस्त आपसे मिलने के लिए आया है और आपको बोल रहा है कि वो आपके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। इसका यह मतलब है उसने आपके घर को रेफरेंस मान लिया या ओरिजिन मान लिया, ठीक है। उसके बेस पे उसने बोला है कि आपके घर से वो 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अगर मैंने बोला कि अगर आपके घर को, इसको मैंने बोला हाउस है आपका, है ना, और आपके घर को उसने क्या मान लिया, रेफरेंस या फिर ओरिजिन, और उसने बोला कि आपके घर से वो 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप बताइए किधर जाएंगे? क्या आप इधर जाएंगे तो अपने दोस्त से मिल पाएंगे 5 किलोमीटर? क्या आप इधर जाएंगे कि 5 किलोमीटर आप जाने पे अपने दोस्त से मिल पाए, या फिर इधर जाएंगे, या फिर इधर जाएंगे, या फिर इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, या फिर इधर जाएंगे? किधर जाएंगे कि आप अपने दोस्त से मिल पाए? आपके दोस्त ने सिर्फ आपको यह बताया कि आपके घर से वो 5 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन आप किधर जाएंगे आपके दोस्त ने बिल्कुल नहीं बताया। तो आपको अपने दोस्त से मिलने के लिए आपके पास एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है। आपका दोस्त कहां पे है उसका एग्जैक्ट पोजीशन आपको बिल्कुल मालूम नहीं है। इसलिए फिजिक्स में पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग एक सिस्टम का यूज करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ध्यान से सुनिएगा, इन जनरल तो हम लोग बोल देते हैं कि वो इलाहाबाद में है, मुंबई में है, लेकिन इलाहाबाद में भी कहां पे, किस डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट में भी है तो वो किस मोहल्ले में है, मोहल्ले में भी है तो कौन सा घर है, और एग्जैक्ट लोकेशन बताना पड़ेगा। अगर आप एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताते हैं तो कोई भी इंसान किसी भी इंसान के पास नहीं जा सकता। सो फिजिक्स में एग्जैक्ट लोकेशन या पोजीशन को बताने के लिए हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं। तो इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। मतलब पोजीशन को समझने के लिए हमें क्या समझना जरूरी है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो लेट्स सी व्हाट इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर फिजिक्स में पोजीशन समझना है तो आपको एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। वो सिस्टम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। खैर, हम लोगों के फिजिक्स के सिलेबस में सिर्फ एक ही सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम।
लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल सिस्टम भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सिलिंड्रिकल सिस्टम। तो इन जनरल फिजिक्स में 3 तरीके के सिस्टम यूज किए जाते हैं। एक को बोला जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरे को बोला जाता है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड तीसरे को बोला जाता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहां पर हम लोग किसके बारे में पहले समझ लें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में समझ लेते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये हम लोग क्यों समझना चाहते हैं, क्योंकि हमें पोजीशन के बारे में मालूम करना है कि कैसे पोजीशन को डिफाइन किया जाए। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वैसा सिस्टम होता है जिसमें 3 एक्सिस होते हैं। हाउ मेनी एक्सिस आर देयर? 3 एक्सिस आर देयर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 3 एक्सिस होते हैं और तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जस्ट लुक एट दैट। मैं इसको आपको फिजिकली दिखाना चाहता हूं कि आखिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर 3 एक्सिस बनाया गया है। इसको आप मान लीजिए एक्स एक्सिस, इसको मान लीजिए वाई एक्सिस और इसको मान लीजिए जेड एक्सिस। और ये तीनों एक्सिस ध्यान से देखिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने का मतलब है 2 एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो ये एक्सिस और ये एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो इसे हमने क्या मान लिया, एक्स वाई जेड एक्सिस, और इस एक्स वाई जेड एक्सिस से मिलकर बनता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हैव यू गॉट माय पॉइंट? और जहां पे एक्स वाई जेड तीनों इंटरसेक्ट करते हैं, तीनों कट करते हैं, उसे हम ओरिजिन कहते हैं। तो इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन मतलब जहां से ये तीनों एक्सिस शुरू हो रही है। जस्ट रिमेंबर दैट। तो इसे हमने बोला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेकिन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं इसे हम लोग समझते हैं। कभी भी जब हम किसी सिस्टम में एक्सिस की बात करते हैं तो 2 एक्सिस हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे सेलेक्ट करें। लेकिन जो तीसरा एक्सिस होता है वो हम पे डिपेंड नहीं करता कि वो एक्सिस कहां पे होगा और कैसे होगा। ये डिपेंड करता है राइट हैंड पे। मैंने क्या बोला, पहला 2 एक्सिस हम पे डिपेंड करता है कि कौन सा 2 एक्सिस, एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा या जेड एक्सिस होगा। लेकिन तीसरा एक्सिस राइट हैंड पे डिपेंड करता है। जस्ट रिमेंबर दैट वन। तो अगर मैंने मान लिया यहां पे कि इसको मैंने एक्स मान लिया और इसको मैंने y मान लिया, ये 2 एक्सिस हमने कंसीडर कर लिया। पहले हमने कंसीडर कर लिया, इसको हम y भी मान सकते थे और इसको हम x मान सकते थे। पहले 2 एक्सिस आप रैंडमली सेलेक्ट कर लीजिए, लेकिन 2 एक्सिस के बेस पे आपको तीसरा एक्सिस सेलेक्ट करना पड़ेगा। वो किसके हेल्प से? राइट हैंड के हेल्प से। तो मैंने मान लिया ये x है और ये y है, ये x है और ये y है। अब z किधर होगा? ये तो मैंने यहां z पहले से बना दिया है, लेकिन z किधर होगा ये आपको डिसाइड करना है राइट हैंड के हेल्प से। तो सारा फिंगर आप राइट हैंड का सारा फिंगर आप x एक्सिस के डायरेक्शन में ले जाएं और उसे आप y एक्सिस की ओर रोटेट करें, तो जो थंब होगा वो z एक्सिस बताएगा। जस्ट रिमेंबर दैट। एक्स एक्सिस की ओर सारा फिंगर्स ले जाएंगे और उसे y एक्सिस की ओर रोटेट करेंगे, और जो थंब का डायरेक्शन होगा वही हमारा z एक्सिस का डायरेक्शन होगा। इसका मतलब अगर ये x है, ये y है, तो ये z होगा। z कभी भी ये नहीं हो सकता, इसके पीछे नहीं हो सकता। अगर ये x है, ये y है, तो ये z होगा। क्यों? क्योंकि जब हम x से y की ओर ले जाएंगे तो हमेशा z मिलना चाहिए। x से y की ओर अगर हम ले जाएंगे तो हमेशा z मिलना चाहिए, और y से अगर हम z की ओर जाते हैं तो हमेशा x मिलना चाहिए, और z से अगर x की ओर जाते हैं तो हमेशा y मिलना चाहिए। जस्ट रिमेंबर दिस वन। इसलिए हम इसे राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, क्योंकि हम राइट हैंड के हेल्प से
तीनों एक्सिस को डिसाइड करते हैं। दो एक्सिस आप रैंडमली सेलेक्ट कर लीजिए और तीसरा एक्सिस आप हमेशा राइट हैंड के बेस पे ही सेलेक्ट करेंगे कि वो आगे जेड एक्सिस होगा या फिर पीछे जेड एक्सिस होगा। अगर आपका ये एक्स एक्सिस है तो वाई एक्सिस की ओर रोटेट किए तो जेड एक्सिस ये होगा, अगर ये जेड एक्सिस है तो पीछे माइनस जेड एक्सिस होगा। हैव यू गॉट माई पॉइंट? तो इसे हमने क्या बोला? राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो चलिए हम लोग यहां पर पोजीशन के बारे में समझते हैं राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम के हेल्प से। तो यहां पर क्या है, हमने मान लिया ये x है, ये y है, तो आप ध्यान से देखो x से y की ओर रोटेट करेंगे तो हमें z मिलेगा, तो z बोर्ड के बाहर है। तो मान लिया जाए मैंने यहां पर x ड्रॉ किया, x एक्सिस, और यहां पे मैंने y एक्सिस ड्रॉ किया, तो z तो बाहर ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया। और ये तीनों एक्सिस क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जस्ट रिमेंबर दैट। और जहां पे तीनों एक्सिस कट करता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑरिजिन, दैट इज 0, 0, 0। हमने 0, 0, 0 क्यों लिखा? क्योंकि ऑरिजिन पे जो x डायरेक्शन में डिस्टेंस है वो भी 0 है, y डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो भी 0 है, एंड z डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो भी 0 है। क्योंकि ओरिजिन है, इसका मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वहां पे जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? 0 होगा। इसलिए हमने लिखा है 0, 0, 0। जब भी हम लिखते हैं तो हमेशा x, y, z के फॉर्म में लिखते हैं। मतलब अगर मैं इस 0 की बात करूं तो ये x इज इक्वल टू 0 है, अगर मैं इस 0 की बात करूं तो ये y इज इक्वल टू 0 है, और इस 0 की बात करूं तो ये z इज इक्वल टू 0 है। कभी भी हम ऐसे नहीं लिख सकते y, x, z, इट्स इम्पॉसिबल। राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको यही लिखना पड़ेगा, पहले x आएगा, फिर बाद में y आएगा, उसके बाद z आएगा। जस्ट रिमेंबर दैट, ओके। नाउ कोई इंसान या कोई पार्टिकल मान लो ओरिजिन से चलना शुरू करता है और एक्स एक्सिस पे वो 3 मीटर चलता है। कितना चलता है? 3 मीटर चलता है। तो वो सिर्फ एक्स एक्सिस पे चलता है, मतलब सिर्फ एक्स में चेंज आएगा, वाई और जेड में किसी तरीके का चेंज नहीं आएगा। तो मैं आपको बोलूं कि अगर मान लो ये पोजीशन ए है, तो बताओ इस पोजीशन पे हम x, y, z को क्या लिख सकते हैं? तो आपने सिर्फ x में चेंज किया, x में कितना चेंज किया? 3 चेंज किया, तो आपने यहां पर लिखा 3। y में कोई चेंज नहीं है तो आपने 0 लिखा, z में भी कोई चेंज नहीं है तो आपने 0 लिख दिया। वेरी गुड। मान लिया जाए वो पार्टिकल फिर a से b गया। a से कहां गया? वो पार्टिकल a से b गया और मैंने बोला ये डिस्टेंस 4 मीटर है। कितना है ये डिस्टेंस? कितना है? 4 मीटर। मतलब B तक पहुंचने के लिए ओरिजिन से आपको X में 3 मीटर चलना पड़ेगा, Y में 4 मीटर चलना पड़ेगा, तब आप B पे पहुंचेंगे। Z में चलने की जरूरत नहीं है, तो आप इसका पोजीशन क्या लिखेंगे? 3x में चले, y में 4 चले और z में चलने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपने लिखा 3, 4, 0। जब आप एक्स वाई जेड में किसी पार्टिकल का पोजीशन बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब x, y, z में किसी पार्टिकल का पोजीशन बताते हैं उसे हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। कोऑर्डिनेट, जस्ट रिमेंबर दैट। उसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कहते हैं। मान लिया जाए मैंने रैंडमली बोला कि एक पार्टिकल 5, 7, 10 पे है। इसका क्या मतलब? इसका यह मतलब है कि आप x एक्सिस में ओरिजिन से 5 मीटर चले हैं, y एक्सिस में आपने 7 मीटर डिस्टेंस कवर किया है और z एक्सिस में आपने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, तब आप जाकर उस पार्टिकल से आप मिल पाए हो या उस पोजीशन को आपने कवर किया है। तो इसका यह मतलब है कि अगर किसी भी पार्टिकल का या ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताना है तो आपको उसका कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा। तो मैथमेटिक्स में पोजीशन को हम क्या कहते हैं? मैथमेटिक्स में पोजीशन को हम कोऑर्डिनेट कहते हैं, या फिजिक्स में भी पोजीशन को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। तो हम लोग बोल सकते हैं पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल
is defined as the coordinate of the particle in any coordinate system. किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर किसी पार्टिकल का कोऑर्डिनेट बताया जाता है, इसका मतलब उस पार्टिकल का पोजीशन बताया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई पार्टिकल 5,7,10 पे है, मतलब x में 5 मीटर चला है, y में 7 मीटर चला है और z में कितना मीटर चला है, 10 मीटर चला है। वेरी गुड। तो हमने यहां पर क्या बोला, दिस इज द वे टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल। वेरी गुड। अब हमने पोजीशन को डिफाइन कर लिया। पोजीशन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको ऑरिजिन सेलेक्ट करना पड़ता है। ऑरिजिन सेलेक्ट करने के बाद आपको देखना पड़ता है कि आप x में कितना चले, y में कितना चले और z में कितना चले, और फाइनली किसी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल का आप पोजीशन बताते हैं। किस फॉर्म में बताते हैं, x, y, z के फॉर्म में। जस्ट रिमेंबर दिस वन। तो यहां पर अगर मैंने पोजीशन बता दिया है, तो पोजीशन अगर बता दिया है तो नेक्स्ट है हमारे पास पोजीशन वेक्टर। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रॉपर्टीज ऑफ मोशन को पढ़ना है, सारे प्रॉपर्टीज में आपको पोजीशन और पोजीशन वेक्टर के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अदरवाइज आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे डिस्टेंस किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, वेलोसिटी किसे कहते हैं, स्पीड किसे कहते हैं। इसलिए सारी चीजों को अगर समझना है तो आपको पोजीशन भी समझना पड़ेगा और साथ साथ पोजीशन वेक्टर भी समझना पड़ेगा। अब पॉइंट है कि पोजीशन वेक्टर में एक टर्म आता है वेक्टर, और वेक्टर के बारे में आप लोग सभी कोई जानते हैं, ऑलमोस्ट सब कोई जानते होंगे, थोड़ा मोड़ा तो जरूर जानते होंगे। तो हम लोग यहां पर वेक्टर के बारे में भी हम लोग ब्रीफ डिस्कशन करने वाले हैं। तो वेक्टर क्या है, हम लोग सभी जानते हैं कि वेक्टर वैसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है। ध्यान से देखिए, मैं एक टर्म यहां पर एडिशनल ऐड कर रहा हूं, दैट इज फिक्स्ड। मतलब मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्शन अगर वेरी कर रहा हो तो उसे हम वेक्टर कहेंगे। वेक्टर उसे कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। अब मैग्नीट्यूड का क्या मतलब, सबसे पहले लोग यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैग्नीट्यूड का क्या मतलब। मैग्नीट्यूड तो एक वर्ड हमने यूज कर लिया, लेकिन इसका लिटरल मीनिंग है क्या। मैग्नीट्यूड का मतलब जस्ट रिमेंबर दैट नंबर। आपने नंबर अगर देखा है तो उसी को ही हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। नंबर जैसे आप नहीं बोलते हो 1 है, 2 है, 2.5 है, 3.6 है, -3.8 है, समथिंग लाइक दैट। इसे ही हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन्स नथिंग बट नंबर। वेरी गुड। तो अगर मैग्नीट्यूड है तो आप लिखोगे कि 1, 2, 2.5, 3.6 एंड 3.8। तो मैंने यहां पर क्या बताया कि वेक्टर उसे कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। लेकिन वेक्टर को एक्चुअली में आपने कभी देखा है या वेक्टर का कभी एहसास किया है कि हाँ ऐसा ही होता होगा। मैं आप लोगों को आज लिटरली में बता रहा हूं कि वेक्टर किसे कहते हैं। ध्यान से देखेंगे, ये आपने देखा होगा, इसे हम एरो कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एरो कहते हैं। अब इस एरो को ही हम वेक्टर कहते हैं। आपने शायद कभी वेक्टर नहीं देखा होगा, लेकिन आपने एरो तो देखा होगा, लेकिन एरो को आपने कभी भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि एरो ही वेक्टर होता है। एक्चुअल में एरो को ही हम वेक्टर कहते हैं। ध्यान से देखें, एरो का कुछ ना कुछ लेंथ होगा। अगर मैं बोलूं यहां पर इसका कुछ ना कुछ लेंथ है, लेंथ अगर मैंने बोला इसका लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो 15 है क्या, 15 एक नंबर है, और नंबर है तो मतलब मैग्नीट्यूड है। अब ध्यान से देखिए, इस एरो को ऐसे बनाया गया है, इसका मतलब ये डायरेक्शन है, ये एरो इधर जाने वाला है। अगर मैंने ऐसे बनाया है मतलब एरो इधर जाने वाला है, मतलब इसका डायरेक्शन फिक्स्ड है। और ध्यान से देखिएगा, एरो एकदम स्ट्रेट होता है। एरो कभी भी आप ऐसे नहीं देखेंगे, एरो हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट होता है। अगर स्ट्रेट है
मतलब एरो है। अगर एरो है मतलब उसमें मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। अगर मैग्नीट्यूड है मतलब उसका लेंथ होगा। लेंथ का मतलब अगर मैंने इसका लेंथ बोला 15 सेंटीमीटर, मतलब ये 15 है क्या एक्चुअल में? ये 15 एक्चुअल में नंबर है, और ये जो सिंबल ऐसा बना हुआ है इसका मतलब ये डायरेक्शन है। तो जिसमें नंबर है, जिसमें डायरेक्शन है, मतलब वो वेक्टर है। तो आप लोग क्या बोल सकते हो? एरो को आप वेक्टर बोल सकते हो, है ना? एरो को क्या बोल सकते हो आप? वेक्टर बोल सकते हो। लेकिन एरो में एक और चीज समझ लेते हैं। इस पार्ट को जब भी ऐसा शो किया गया है इसे हम हेड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हेड कहते हैं। और इसे हम टेल कहते हैं। मतलब अगर ये हेड है मतलब ये फाइनल पॉइंट है। इस एरो का फाइनल पॉइंट ये है और इस एरो का जो इनिशियल पॉइंट है ये है। मतलब टेल को इनिशियल पॉइंट कहते हैं और हेड को क्या कहते हैं? फाइनल पॉइंट कहते हैं। तो मान लिया जाए मैंने यहां पर एक एरो इस तरीके से बनाया है, ध्यान से देखेंगे। अगर मैंने एरो इस तरीके से बनाया है, ये एरो है, तो इसे हम हेड कहेंगे। हेड का मतलब फाइनल पोजीशन या फाइनल पॉइंट, और इसे हम टेल कहेंगे, मतलब इनिशियल पोजीशन। हैव यू गॉट माई पॉइंट? तो ये हमारा वेक्टर है। वेक्टर को आपने फिजिकली देख लिया। वेक्टर मतलब एरो। जस्ट रिमेंबर दिस वन। अब हम लोग इसको मैथमेटिकली लिखते कैसे हैं वेक्टर को, उसे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूं। मान लो ये x है, ये y है और ये हमारा z है। दिस इज द XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस इज 0, 0, 0। मतलब दिस इज द origin where all these three axes cut each other. That point is known as origin or the reference point. वेरी गुड। अब मैं यहां पर बता रहा हूं कि एरो को मैथमेटिकली लिखते कैसे हैं या वेक्टर को हम मैथमेटिकली लिखते कैसे हैं। मान लिया जाए ये वेक्टर यहां पे है, मान लिया जाए ये वेक्टर हमने यहां पर रखा है। अगर यहां पे रखा है तो इस वेक्टर का कुछ ना कुछ तो लेंथ है। मान लो ये हमारा इस वेक्टर का एक लेंथ है, यहां से यहां तक लेंथ है, और मैंने बोला ये लेंथ हमारा 15 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 15 सेंटीमीटर है। मतलब अगर मैं इस एरो का लेंथ बताऊं, अगर इस एरो का, इस वेक्टर का लेंथ बताऊं, वही लेंथ हमारा क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड। मतलब मैं आपको बोलूं कि एरो का जो लेंथ होता है, एरो का लेंथ जो होता है वही मैग्नीट्यूड होता है किसी भी वेक्टर का। मैग्नीट्यूड होता है किसी भी वेक्टर का। तो मैं बोलूं कि बताओ यहां पे जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो कितना है? तो आप बोलोगे मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 15। वेरी गुड। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये किस डायरेक्शन में है तो आप बोलोगे ये एक्स डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस की ओर दिख रहा है, मतलब ये एक्स डायरेक्शन में है। तो डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर x डायरेक्शन में है तो I से रिप्रेजेंट करते हैं, y डायरेक्शन में है तो J से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इस डायरेक्शन में ऐसे रखा गया है मतलब y डायरेक्शन में है तो J से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इस डायरेक्शन में ऐसे रखा गया है मतलब Z डायरेक्शन में है तो हम K से रिप्रेजेंट करेंगे। I कैप, J कैप एंड K कैप, ये जब हम कैप यूज कर लेते हैं इसका मतलब इसे हम डायरेक्शन कहते हैं। अगर x डायरेक्शन में है तो i कैप यूज करेंगे, y डायरेक्शन में है तो j कैप यूज करेंगे एंड z डायरेक्शन में है तो k कैप यूज करेंगे। इस i कैप को कभी कभी हम x कैप भी लिखते हैं, j कैप को कभी कभी हम स्मॉल y कैप लिखते हैं और k कैप को हम लोग कभी कभी स्मॉल z कैप लिखते हैं। तो मान लिया जाए मैंने यहां पर एक वेक्टर लिया है और इस वेक्टर को मैंने a मान लिया। अगर ये वेक्टर है तो इसके ऊपर हमें एरो साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि एरो ही तो वेक्टर होता है। तो अगर मैं बोलूं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है तो आप बोलोगे 15। वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन कितना है? डायरेक्शन कौन सा है? ये एक्स डायरेक्शन में था तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे? 15 i कैप। वेरी गुड।
लेकिन अगर मैंने बोला कि ये यहां पे है सपोज, तो इसका मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होने वाला, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने वाला है। इस वेक्टर को हमने यहां पर b मान लिया, तो अब मैं बोलूं कि b वेक्टर को क्या लिखेंगे, तो आप लिखोगे 15 मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन कितना है, तो डायरेक्शन आपका y है, तो आप क्या लिखोगे j कैप। अगर आपने यहां पर रख दिया तो आप मान लो इसको c वेक्टर बोले, तो c वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 15, लेंथ तो चेंज नहीं होने वाला, और इसका डायरेक्शन क्या है z एक्सिस है, इसका मतलब हम लोग यहां पर k कैप लिख सकते हैं। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15x कैप, इसको लिख सकते हैं 15y कैप, और इसको लिख सकते हैं 15z कैप। तो यहां आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोग वेक्टर को लिखते कैसे हैं मैथमेटिकली। वेक्टर को अगर हमारे पास कोई वेक्टर दिया हुआ है, कोई एरो दिया हुआ है, तो उसका हमारा जो लेंथ होगा वो मैग्नीट्यूड कहलाएगा, और वो एरो जिस डायरेक्शन में है अगर वो डायरेक्शन हमने लिख दिया मतलब हमने कंप्लीट वेक्टर के बारे में डिस्क्रिप्शन दे दिया। तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि वेक्टर किसे कहते हैं और वेक्टर को हम लोग मैथमेटिकली लिखते कैसे हैं। तो हमने वेक्टर को यहां पर लिख दिया, वेरी गुड। अब यहां पर हम लोग देखते हैं किसी के पोजीशन के हेल्प से हम वेक्टर को कैसे डिफाइन करें। मतलब आपको पोजीशन दिया हुआ है और फिर आपको बोला जाए वेक्टर डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करते हैं, जस्ट लुक एट दैट। मान लिया जाए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये हमारा जेड एक्सिस है। तो मैं आपको बोलूं कि बताइए ये क्या है, तो आप बोलोगे ये ओरिजिन है। तो यहां पर एक्स वाई जेड कितना होगा 0,0,0 होगा। मैंने बोला कि कोई इंसान इस ओ से 3 मीटर चला है एक्स डायरेक्शन में। कितना मीटर चला है, एक्स डायरेक्शन में चला है 3 मीटर, और मान लो ये यहां पे पहुंच गया। कहां पे पहुंच गया, ए पे। तो ए अगर मैं यहां से यहां 3 मीटर चला, तो बताओ आप सिर्फ x में चले या फिर y में भी चले या z में भी चले, सिर्फ आप x में चले, इसलिए सिर्फ x को चेंज करोगे। कितना चले 3, सो आपने 3 लिखा। y में आपने नहीं चला इसलिए 0 लिखा, z में नहीं चला इसलिए आपने 0 लिखा। तो 3,0,0 ऐसे लिख दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर मैं यहां से यहां अगर इस पॉइंट को जोड़ूं, तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये यहां से यहां चला है, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, ये स्ट्रेट है। मैंने बोला था जब भी ये स्ट्रेट होगा मतलब एरो की तरह एक्ट करेगा, और एरो है मतलब वेक्टर है। तो यहां से यहां तक एक स्ट्रेट पाथ है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, ओ से ए गया तो इस वेक्टर का नाम हो गया ओ ए वेक्टर। इस वेक्टर का क्या नाम हो गया, ओ ए वेक्टर। अब किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका आपको तो पहले से मालूम है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, लेकिन जब पोजीशन दिया होता है तो पोजीशन के हेल्प से हम किसी वेक्टर को कैसे लिखते हैं, जस्ट लुक एट हियर। तो यहां पर अगर मैं किसी भी वेक्टर को मैथमेटिकली लिखना हो, तो मान लो यहां पर ओ ए वेक्टर है, तो ओ ए वेक्टर को जब मैथमेटिकली लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। एक्स के डायरेक्शन में एक्स जब लिखेंगे मतलब एक्स का डायरेक्शन क्या होता है आई कैप, प्लस वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल जे कैप, प्लस जेड फाइनल माइनस जेड इनिशियल के कैप। जब भी आपको पोजीशन दिया रहेगा तो आप पोजीशन के बेस पे अगर वेक्टर कैलकुलेट करना है तो आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। ओ ए वेक्टर है इसलिए मैंने एरो साइन लगाया है। जस्ट जब भी वेक्टर होगा, मान लिया जाए ए एक वेक्टर है तो ए के ऊपर एरो साइन, पी एक वेक्टर है तो पी के ऊपर एरो साइन लगाएंगे। ये सिंबल है किसी भी वेक्टर का। तो मैं बोलूं कि ओ ए वेक्टर कैसे लिखा जाए, तो सबसे पहले आपको x फाइनल x इनिशियल, y फाइनल y इनिशियल, z फाइनल z इनिशियल आपको चाहिए। तो मैं आपको बोलूं ये 0,0,0 क्या है, ये यहां से शुरू हुआ है और यहां पे खत्म, मतलब o इनिशियल है और a फाइनल है। तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, x इनिशियल कितना है 0, y इनिशियल कितना है 0, z इनिशियल कितना है 0।
यहां पर ये फाइनल है, मतलब आपको x इनिशियल पूछा जाए कितना है तो आप बोलोगे 3, y इनिशियल कितना है तो आप बोलोगे 0, z इनिशियल कितना है, सॉरी इनिशियल नहीं है, दिस इज फाइनल है, सो हम लोग क्या लिखेंगे, x फाइनल इज इक्वल टू 3, y फाइनल इज इक्वल टू 0 एंड z फाइनल इज इक्वल टू 0, बिकॉज a इज द फाइनल पोजिशन एंड O इज द इनिशियल पोजिशन। जस्ट रिमेंबर दैट, अगर एरो ऐसे दिया हुआ है तो ये इनिशियल होगा और ये फाइनल, ये जो टेल है ये इनिशियल होगा और हेड जो होगा वो क्या होगा, फाइनल। तो अगर मैं वहां OA वेक्टर का फाइनल x देखूं, फाइनल x कितना है 3, तो हमने यहां पर लिखा 3, इनिशियल x 0 है तो 0 लिख दिया, और ये i कैप प्लस फाइनल y कितना है, फाइनल y 0 है, इनिशियल y भी 0 है, j कैप प्लस फाइनल z 0 है, इनिशियल z भी 0 है, दैट इज k कैप। सो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, 3i कैप, ये तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब OA वेक्टर कितना हो गया, 3i कैप। OA वेक्टर कितना हो गया, 3i कैप। वेरी गुड। अब मैंने बोला कि वो पार्टिकल A से B गया है, A से B गया है और ये 4 मीटर है, तो अगर A से B गया है तो A इनिशियल हो जाएगा और B फाइनल हो जाएगा, तो इसको कौन सा वेक्टर आप बोलोगे, इसे आप बोलोगे AB वेक्टर। लेकिन B का पोजीशन क्या होगा, B का पोजीशन अगर B तक पहुंचना है O से, तो आप O से A चले मतलब 3 मीटर, X में 3 चले, Y में आप 4 चले, दिस इज Y, तो Y में 4 चले तो आप क्या लिखोगे, X में 3, यहां तक पहुंचने के लिए X में 3, Y में कितना 4, और Z में चलने की जरूरत ही नहीं है, तो Z कितना हो जाएगा 0। तो मैं बोलूं कि अब AB वेक्टर कैसे लिखोगे, AB वेक्टर, AB वेक्टर लिखने का क्या तरीका, तो आप क्या बोलोगे कि AB वेक्टर के लिए A इनिशियल है और B क्या है, फाइनल है, तो यहां पर जो होगा दिस इज X फाइनल, दिस इज Y फाइनल एंड दिस इज Z फाइनल, और ये जो है A का ये हो जाएगा X इनिशियल, Y इनिशियल एंड Z इनिशियल। क्लियर है। अब इसके बेस पे हम AB वेक्टर निकाल लेंगे, तो यहां पर X फाइनल कितना है, 3 है, तो हमने 3 लिखा, Y फाइनल X फाइनल ये है तो X इनिशियल कितना है, 3 है, सो 3 माइनस 3 I कैप प्लस दिस इज Y फाइनल एंड दिस इज Y इनिशियल, 4 माइनस 0 J कैप प्लस 0 माइनस 0 K कैप, 0 माइनस 0 K कैप, तो ये क्या हो गया, दिस इज 0, दिस इज 4J कैप एंड दिस इज आल्सो 0, मतलब हमारे पास जो AB वेक्टर हो गया वो ये हो गया 4J कैप। हैव यू गॉट माई पॉइंट, वेरी गुड। मैं आपको बोलूं कि चलो मैंने OA वेक्टर निकाल लिया, AB वेक्टर निकाल लिया, अगर मैं बोलूं कि चलो आप ये वेक्टर निकाल के बताओ कि कितना होगा, ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा, ये O से शुरू हुआ है और कहां पे गया है, ये वेक्टर स्ट्रेट होना चाहिए। वेक्टर के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो स्ट्रेट होना चाहिए, अगर स्ट्रेट नहीं है तो वो एरो नहीं बन सकता दोस्त, तो स्ट्रेट होना चाहिए। तो O से B तक गया है तो हम इसे बोलेंगे OB वेक्टर। तो OB वेक्टर में क्या होगा, O इनिशियल होगा और B फाइनल होगा, O इनिशियल एंड B क्या हो जाएगा, फाइनल। तो फाइनल x कितना है हमारा 3 और इनिशियल x कितना हो जाएगा 0, सो 3 माइनस 0 I कैप, 3 माइनस 0 I कैप, y फाइनल कितना हो गया 4, y इनिशियल 0 है J कैप प्लस Z फाइनल 0, Z इनिशियल 0 K कैप। आप यहां पर क्या लिख रहे हो, 3I कैप प्लस 4J कैप, मतलब आपने OB वेक्टर क्या लिखा, 3I कैप प्लस 4J कैप। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने आपको वेक्टर लिखने का एक तरीका बताया है कि अगर आपको पोजीशन मालूम है, 2 पॉइंट का पोजीशन मालूम है और 2 पॉइंट को आपने स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया है तो वही आपका वेक्टर हो गया। और वेक्टर लिखने का तरीका
x फाइनल माइनस x इनिशियल i कैप प्लस y फाइनल माइनस y इनिशियल j कैप प्लस z फाइनल माइनस z इनिशियल k कैप, आपने वो लिख दिया। तो इस तरीके से आप वेक्टर लिख सकते हो अगर आपको पोजीशन मालूम है, पोजीशन का मतलब कोऑर्डिनेट अगर आपको मालूम है तो, या आपने आसानी से ये लिख दिया, वेरी गुड। लेकिन मैं यहां से इस फिगर से मैं आप लोगों को एक और चीज समझाना चाहता हूं। वो क्या समझाना चाहता हूं वो ध्यान से देखें। मान लिया जाए ये x था, ये z था, और ये x था, ये y था, और ये हमारा क्या था, z था। आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका 3 है, दिस इज O, दिस इज A, ये आपका 4 है, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, और ये आपका ये है। आप ध्यान से देखोगे तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये क्या है, एक दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। ये x और y एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर है। ये x है और ये किस डायरेक्शन में, y, मतलब दोनों परपेंडिकुलर, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर है? अच्छा, जो मैंने OB वेक्टर बोला है, दिस इज द OB वेक्टर। इस OB वेक्टर में आई कैप भी है और जे कैप भी है। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि इस OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, लेंथ बताओ, तो आप क्या बताओगे कि इसका क्या लेंथ 3 है, क्या इसका लेंथ 4 है? नहीं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ध्यान से देखिए, 3i कैप प्लस 4j कैप। लेकिन मैं आपको, अगर मैं OB वेक्टर का लेंथ बताऊं, मतलब ये लेंथ आपको चाहिए, यहां से लेकर यहां तक का लेंथ चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से यहां तक का जो लेंथ है ये एक्चुअल में हाइपोटेनियस है। ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, और ये हमारा हाइपोटेनियस है। अगर ये हाइपोटेनियस है, मतलब अगर मैं O से B का लेंथ पूछूं, हाइपोटेनियस मतलब लेंथ, यहां पर जो हाइपोटेनियस है दिस इज द लेंथ। तो अगर मैं बोलूं हाइपोटेनियस क्या होता है, तो हाइपोटेनियस आपको मालूम है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अगर मैंने आप लिखा यहां पर बेस स्क्वायर पर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब बेस कितना है यहां पर 3 स्क्वायर और परपेंडिकुलर कितना है 4, तो यहां पर हमने क्या लिखा 4 स्क्वायर। तो मैं बोलूं कि किसी भी वेक्टर का अगर लेंथ पता करना हो, मैंने पहले भी बताया है कि वेक्टर का जो लेंथ होता है वही तो मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर किसी भी वेक्टर का लेंथ पता करना हो तो आप देखिए लेंथ हमने कैसे लिखा, √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और वेक्टर हमने क्या लिखा है, OB वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। और इसका लेंथ आप ध्यान से देखो, इसका लेंथ हमने कितना लिखा, √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब x के साथ जो है, i कैप के साथ जो है उसका स्क्वायर किया है, j कैप के साथ जो है उसका स्क्वायर किया है। अगर k कैप के साथ भी होता तो उसका भी स्क्वायर कर देते हैं और वो हमारा लेंथ हो जाता। मतलब किसी भी वेक्टर का अगर लेंथ पता करना हो तो लेंथ हम कैसे निकालते हैं, जस्ट रिमेंबर दैट। किसी भी वेक्टर का अगर लेंथ पता करना हो, मतलब मैग्नीट्यूड अगर पता करना हो, तो हम लोग लिखते हैं √x कॉफिशिएंट स्क्वायर प्लस y कॉफिशिएंट स्क्वायर प्लस z कॉफिशिएंट स्क्वायर। जस्ट रिमेंबर दैट। यहां पर x कॉफिशिएंट कितना था, 3 था, इसलिए √3 स्क्वायर लिखा, और यहां पर y कॉफिशिएंट कितना है, 4 है, तो 4 स्क्वायर। लेकिन यहां z है ही नहीं तो यहां पर z आया ही नहीं। तो अगर मैं इसका लेंथ बोलूं तो कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब ये कितना हो जाएगा √25, और √25 क्या होता है 5, मतलब ये जो लेंथ हो जाएगा ये 5 मीटर हो जाएगा। मतलब अगर आपके पास कोई वेक्टर दिया गया है, जस्ट रिमेंबर दैट, मैंने बोला कि मेरे पास कोई एक वेक्टर दिया हुआ है, AB वेक्टर, कोई एक वेक्टर रैंडम सेलेक्ट कर लिया हमने, और वो वेक्टर कुछ ऐसा दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो मैंने बोला ये वेक्टर तो आपने i कैप, j कैप एंड k कैप के फॉर्म में लिख दिया। लेकिन मैंने पूछा कि इस वेक्टर का लेंथ बताओ, मैग्नीट्यूड बताओ,
तो मैग्नीट्यूड कैसे बताओगे? इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा आप लिखोगे अंडर रूट एक्स कंपोनेंट स्क्वायर। तो एक्स की जगह पर कितना है? 2 है तो 2a स्क्वायर लिख दिया। y की जगह पर कितना है? 3 है तो आपने 3a स्क्वायर लिख दिया। z की जगह पर कितना है? 5 है तो आपने 5a स्क्वायर लिख दिया। तो ये कितना हो गया कैलकुलेशन के बाद? 4 + 9 + 25 दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 30। ये आपका लेंथ हो गया उस वेक्टर का। जस्ट रिमेंबर दैट। तो आपको समझ में आ गया कि हम वेक्टर कैसे निकालते हैं। अगर पोजीशन दिया है तो वेक्टर हम कैसे निकालते हैं। वेक्टर निकालने का तरीका मैंने बता दिया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करके। ये फार्मूला आपको यूज करना है। और वेक्टर निकालने के बाद अगर वेक्टर जो आपने निकाला है उसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा, मैग्नीट्यूड होगा, तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका अंडर रूट एक्स कॉफिशिएंट स्क्वायर प्लस वाई कॉफिशिएंट स्क्वायर प्लस जेड कॉफिशिएंट स्क्वायर। वेरी गुड। तो मैंने यहां पर आप लोगों को बताया कि वेक्टर लिखते कैसे हैं, है ना। तो मैंने यहां पर मान लिया, आप लोगों को फिर से यहां पर मैं वेक्टर लिखने का तरीका बता रहा हूं। एक्स वाई जेड मान लिया जाए ये हमारा पोजीशन है 0, 0, 0 और मान लिया जाए ये पोजीशन हमारा P है और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3, 4, 12 और फिर आपको बोला जाए कि चलो ये OP है और अगर मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, मतलब ये वेक्टर है। अभी इस वेक्टर को लिखकर बताओ कि क्या होगा। तो आप इस वेक्टर को क्या करोगे? OP वेक्टर। इनिशियल कौन सा? जहां से शुरू हुआ है। फाइनल कौन सा? जहां पे खत्म हुआ है। जो टेल है वो इनिशियल है, जो हेड है वो फाइनल है। तो आप क्या लिखोगे? x फाइनल माइनस x इनिशियल दैट इज 3 - 0 i कैप, 4 - 0 k j कैप प्लस 12 - 0 k कैप। यहां पर लिखा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12 k कैप। दिस इज द OP वेक्टर। ये OP वेक्टर तो निकाल दिया, लेकिन मैंने बोला कि OP का लेंथ बताओ, मतलब इसका मैग्नीट्यूड बताओ। तो आप इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 12a स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 9 + 16 + 144 दैट इज 25, 169 एंड दैट इज 13। मतलब इसका लेंथ 13 मीटर हो गया। दिस इज द मैग्नीट्यूड। क्लियर है? लेकिन इस मैग्नीट्यूड को एक्चुअली में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली तो कैसे करते हैं? ये OP वेक्टर है तो OP वेक्टर को अगर मोड के अंदर लिख देते हैं, इसका मतलब OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब भी आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना पड़ेगा तो OP वेक्टर को आप मोड के अंदर रख देंगे। मोड के अंदर रख देंगे तो वो आपको मैग्नीट्यूड दे देगा। और मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका मैंने यहां पर बता दिया कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हमने ये वेक्टर डिफाइन किया, लेकिन एक्चुअली में हमें वेक्टर के बारे में नहीं जानना था। हमें यहां पर किसके बारे में जानना था? हमें पोजीशन वेक्टर के बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर यहां पे O है हमारा इनिशियल पोजीशन और जो P है वो फाइनल पोजीशन। मान लो किसी पार्टिकल का पोजीशन P है जिसकी वैल्यू 3, 4, 12 है। तो जब कोई वेक्टर ओरिजिन से उस पार्टिकल तक ड्रॉ किया जाता है तो उस वेक्टर को, ये वेक्टर है, जब ओरिजिन से उस पार्टिकल के पोजीशन तक कोई वेक्टर ड्रॉ किया जाता है तो उसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। कौन सा वेक्टर कहते हैं? उसे हम कौन सा वेक्टर कहते हैं? उसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है द वेक्टर required to define the position of any particle or object from the origin is known as position vector. Have you got my point? मैंने क्या बोला? एक ऐसा वेक्टर
जिसका यूज हम इसलिए करते हैं ताकि किसी भी पार्टिकल का पोजीशन किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में बता सके। कहां से? ओरिजिन से। तो ओरिजिन से हम पार्टिकल का पोजीशन बताते हैं किस वेक्टर के हेल्प से? पोजीशन वेक्टर के हेल्प से। तो मान लिया जाए मैंने यहां पर लिखा है, जस्ट फिर से मैंने पोजीशन वेक्टर के बारे में बोला, तो यहां पर देख लेते हैं, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। ये हमारा ओरिजिन है और मान लो ये हमारा कोई पार्टिकल है और इस पार्टिकल को मैंने बोला एस और इसका जो कोऑर्डिनेट है मैंने बोला 4, 5, 20। क्या मैंने बोला? 4, 5, 20 इसका पोजीशन है। तो मैंने बोला कि इसका पोजीशन आप कैसे पता करोगे? तो इसका पोजीशन पता करने के लिए आपने एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिया। कहां से? ओरिजिन से। जब भी कोई वेक्टर ओरिजिन से किसी पार्टिकल के पोजीशन को डिफाइन करने के लिए ड्रॉ किया जाता है तो उसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि उस पोजीशन वेक्टर को आप क्या कहोगे, तो इस पोजीशन वेक्टर को आप बोलोगे OS। जब भी ओरिजिन से ड्रॉ किया जाए कोई भी वेक्टर तो उसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो यहां पर मैं बोलूं कि OS वेक्टर को कैसे लिखा जाए, तो OS वेक्टर को आप लिखोगे 4 - 0 i कैप प्लस 5 - 0 j कैप प्लस 20 - 0 k कैप। ये आपने लिख दिया। तो OS वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर है, दैट इज 4 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 20 k कैप, दैट इज द OS वेक्टर। अब मैं बोलूं कि OS वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, इसका लेंथ बताओ। तो लेंथ बताने के लिए क्या है, इस OS वेक्टर को आप मोड के अंदर रखें। मोड के अंदर रखेंगे इसका मतलब क्या बता रहे हैं आप? मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। कितना हो जाएगा? 4a² प्लस 5a² प्लस 20a², दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 25 प्लस 400। अगर आप इसे 25 प्लस 16 कितना होता है? 41। 41 प्लस 400 कितना? 441 मतलब 21 मीटर। मतलब इसका लेंथ कितना हो गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 21 मीटर। मैं आप लोगों को यहां पे ये बताना चाह रहा था कि वेक्टर कैसे लिखते हैं। वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो जब भी आप वेक्टर लिखते हैं, अगर आपके पास पोजीशन दिया हुआ है तो पोजीशन के बेस पे आप वेक्टर कैसे लिखते हैं वो फार्मूला मैंने बताया, x फाइनल माइनस x इनिशियल i कैप। और वेक्टर आपने जब लिख दिया है तो वेक्टर का आपको लेंथ मालूम करना हो, लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड मालूम करना हो, तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला लिख दिया मैंने, √x कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस y कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस z कोफिशिएंट स्क्वायर। अब मैंने बोला वैसा वेक्टर जो किसी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल का पोजीशन बताता हो ओरिजिन से, उस वेक्टर को हमने क्या नाम दिया? पोजीशन वेक्टर। तो हम यहां पर पोजीशन वेक्टर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एनी वेक्टर विच इज यूज्ड टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। जस्ट रिमेंबर दैट, फ्रॉम द ओरिजिन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ओरिजिन से कोई वेक्टर ड्रॉ किया गया है उसे ही हम पोजीशन वेक्टर कहेंगे। वेरी गुड। तो हमने यहां पर पोजीशन वेक्टर के बारे में समझ लिया, लेकिन हमें इन सारी चीजों के बारे में जानने की क्या जरूरत है? इन सारी चीजों के बारे में जानने की इसलिए जरूरत पड़ जाती है क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले टॉपिक्स में यूज करने वाले हैं और ये सारा चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारा चीज आपको समझ में नहीं आता है तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो आज का लेक्चर आप लोग ये समझ लीजिए कि आज का लेक्चर आपको उन सारी चीजों पे डिस्कस किया गया है जो चीजें आपको पूरे इस टॉपिक पे, मतलब इस काइनेमेटिक्स के से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसको समझने के लिए आज का बेसिक टॉपिक डिस्कस किया गया है। ठीक है, सो विद दिस आई थिंक मुझे यहाँ पे इस लेक्चर को खत्म करना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोशन के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मोशन कितने तरीके के होते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन, इनके बारे में पढ़ेंगे और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे।
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोशन के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो अब तक जो मैंने समझाया है, अगर आपको पसंद ना आया हो तो एक डिसलाइक बटन होता है, उस डिसलाइक बटन पे आप प्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।